Okay, so let's say data from API for products. So yesterday in the last session, we have covered this part, how to capture data from corresponding APIs for categories. In a similar way, we need to have data from API only for products, right? तो कौन सा वाला API यूज करोगे आप यहाँ पे? So you'll be having 4 fake store APIs और यहाँ पे आपको जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सब प्रोडक्ट्स आपको फेच करना. Now you may perform this concepts via promises using fetch API functionality. इसे आप perform कर सकते हो. So let's perform this, but we'll close this topic by async of it. तो पहले fetch से call कर लेते हैं ये API का data. So in the last session we have already covered this part, how to capture data through fetch. You need to set your mode, which is having post functionality. So ये same task आप इसके through भी कर सकते हो products के लिए. So assume these are the products, okay, which is having title, price, and lots of things available here. तो ये आप fetch के through भी perform कर सकते हो. So fetch, let's say your path name, by default it is in get method और यहाँ पे आपको mode use करना है. You want to allow data from cross domain, so you have to set your mode. So mode यहाँ पे define कर लेंगे course करके. Okay, so let's set your mode which is equal to course and handler use करेंगे. Fetch का output क्या होता है आपका? JSON functionality होता है. So you'll be having response और response के through आपका ये functionality call होगा JSON, which is also generating promises और finally आपको यहाँ पे आपके values API से call करके मिल जाए. So you may set your values here. So in console, you just need to set value. So you will be having something from API. So I will say products from API. तो ये आपका fetch के through data क्या होगा? Call हो जाएगा. So let's perform this part. Okay. Let's say in console, do we have any values from APIs? Okay. So ये देखो products from API. और टोटल 20 प्रोडक्ट्स जो है वो API से अवेलेबल एंड यू मे रिप्लेस योर वैल्यूज यूजिंग दिस API डेटा. या आप बाद में रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, बट वी डोंट वांट टू यूज दिस फेच API. ये हमने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है इन द लास्ट सेशन. विल बी यूजिंग अ स्पेशल कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ फेच यूजिंग हैंडलर कॉन्सेप्ट. वी मे परफॉर्म async and await. सो async and await जो है वो बेटर वे ऑफ राइटिंग योर फेच फंक्शनैलिटी है. आप नॉर्मल प्रोमिसेस यूज करो, उससे अच्छा आप async await से बेटर वे से डेटा प्रोसेस कर सकते हो. तो सबसे पहले async क्या होता है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो व्हाट इज async in terms of functionalities? So assume there is a function in JavaScript. Okay, अगर JavaScript में आपके पास कोई फंक्शन है और ये फंक्शन के अंदर से आप कुछ रिटर्न करते हो. assume आप रिटर्न करते हो कुछ कैटेगरी के नाम, ठीक है, तो आपने ये कैटेगरी के नाम यहाँ पे क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया. So if you are returning something from any function, so you have to hold this value. ये function का value आपको एक variable में क्या करना होगा? Hold करना होगा. So let's hold this value from function. और आप console में print कर लेना answer. You'll be having your results. So since you are returning an array, okay, कौन से function से आप return कर रहे हो? My function से return कर रहे हो, तो entire array जो है वो आपको ये variable में क्या होगा? Capture हो जाएगा. इट्स अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट. रिटर्न कीवर्ड क्या होता है? फंक्शन के अंदर से आप कोई भी चीज रिटर्न कर सकते हो फंक्शन के अंदर से. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव रिसीव्ड एज एन आंसर. ओके, सो दिस इज योर नॉर्मल फंक्शन. आप कोई भी फंक्शन के अंदर आप रिटर्न करते हो, तो ये रिटर्न्ड वैल्यू जहां पे आप फंक्शन कॉल करोगे वहां पे होल्ड हो जाएगा. ठीक है, आपका फंक्शन में भी एनोनिमस भी हो सकता है, डजंट मैटर, राइट. ओके, अगर आपका फंक्शन एनोनिमस भी है तो आप ऐसे भी आप उसको रिटर्न कर सकते हो. दैट इज आल्सो अलाउड. सो यू मे हैव योर आंसर्स इन दिस. सो कोई भी फंक्शन से आप रिटर्न कर सकते हो, वेदर इट इज एनोनिमस, एरो फंक्शन और एनी नेम्ड फंक्शन. बट अगर आप ये फंक्शन के नाम के आगे async लिखते हो तो क्या होता है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो यू मे हैव योर फंक्शन विद async एंड विदाउट async कीवर्ड. दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है. सो आई विल से फंक्शन async. ओके, एक फंक्शन बना लेते हैं my function 1, but we need to set our function keyword and let's have a function name my function 1 and let's return something as an object. एक object return कर देते हैं. So name equal to something, okay, and age equal to something. अब what is the output of this async function? So variable I will say result.
and that is equal to my function. And now see the behavior. What is the output of async function? So output of async function is always promises. Line number 14 पे आप check करना. Output of async function, it is always acting as a promises. This is the behavior of async function. Async function always आपको क्या generate करके देगा? Promises, and then you can hold its value with the help of this handlers. ये handlers आप उसका data क्या कर सकते हो? Hold. So if you are having function which is having this keyword async, so async function जो है always return करता है आपको promises, और ये promises के अंदर से आप क्या कर सकते हो? फिर आपके values को access कर सकते हो. ठीक है? So output of async function is promises. तो आप यहाँ पे handler use करोगे और जो भी values होंगे वो values को आप यहाँ पे जाके capture करोगे. So since you have returned this object, okay, आपने ये object return किया, तो ये object आपको ये value में यहाँ पे मिलना चाहिए. So I will say API data यहाँ पे लिख देते हैं. API data value में object मिलना चाहिए. This is what an assumption. ये देखो. अच्छा, ये function ये arrow function भी हो सकता है और maybe anonymous function भी हो सकता है. So assume if this function it is an anonymous function, तो ऐसे लिखा जाएगा like this. तो इसको आप async और function ऐसे भी लिख सकते हैं. This is also allowed. Okay, simple definitions है. You will be having same answers in this case. और maybe ये function arrow function भी हो सकता है. So you have to write down in this way. So async you have to write down for every cases. Answer will remain same. So whether you are using normal function, anonymous function or arrow function, async अगर आप लिखते हो function के नाम के आगे, तो इसका जो आंसर है वो आपको मिलना चाहिए promises, और promises को आपको क्या करना है? हैंडल करना. अब async और await कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं API का डेटा कॉल करते हैं. तो पहले तो फंक्शन async जो है हो सकता है और आउटपुट ऑलवेज promises होगा, पहले तो वो पता होना चाहिए. ठीक है? अब await और async कैसे इंटरनली कनेक्टेड है वो हमें देखते हैं. लेट्स से async and await together. So I want to fetch data through API से डेटा फेच करना है, राइट? कोई भी एक API से डेटा फेच करेंगे और ये हमें फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करना है. आई विल से फंक्शन API डेटा, ओके, और यहाँ से हमें डेटा क्या करना है? फेच करना है. सो वेरिएबल आंसर दैट इज इक्वल टू, हम लोग कौन सा वाला फंक्शनैलिटी यूज करेंगे? फेच फंक्शनैलिटी यूज करेंगे. आप कोई भी API से डेटा कैप्चर कर सकते हैं. ठीक है? सो लेट मी हैव एनी API राइट नाउ. प्रोडक्ट से डेटा कैप्चर कर लेते हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट से डेटा कैप्चर. ओके, सो लेट्स सेव दिस फॉर्मूला. और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मोड क्या रखना है आपको? यहाँ पे कोर्स रखना है. ठीक है? सो लेट्स से मोड इक्वल टू कोर्स. तो फेच फंक्शन से आप डेटा कैप्चर करोगे और मोड कोर्स है, एंड देन यू विल बी हैविंग योर आंसर हियर. बट दिस पर्टिकुलर लाइन, एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन, इट रिक्वायर्स सम टाइम. कुछ टाइम चाहिए उसको रिक्वायर करने के लिए. So maybe assuming that this particular fetch functionality, it takes 1 millisecond to fetch your data. 1 millisecond extract कर. ठीक है? तो अगर हमें अपने functionalities में handlers use नहीं करने हैं, तो आप वो handlers के बदले await का concept use कर सकते हैं. So let's say fetch का output क्या होना चाहिए? So when you see output of fetch is always response.json function. और उसके बाद आपको actual values यहाँ पे क्या मिलेगा? क्लब करके मिलेगा. So I am assuming that I must have वेरिएबल कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आता है. लेट मी कॉल दिस API डेटा फर्स्ट. इसमें से API डेटा क्या करते हैं? कॉल करते हैं. सो ये फेच एग्जीक्यूट होगा, कोर्स मोड इनेबल है, और आंसर में क्या आना चाहिए आपको? जेसन फंक्शनैलिटीज आना चाहिए. दिस इज योर रिस्पॉन्स. अज्यूम करोगे दिस इज योर रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स में आपको जेसन फंक्शनैलिटी विजिबल होना चाहिए. ओके, लेट्स से नॉर्मल फंक्शन विदाउट await, there is no async keyword and nothing. ठीक है? देखो प्रॉमिस आ गया आपका, प्रॉमिस फुलफिल्ड हुआ है यहाँ पे, और इसके प्रोटोटाइप में यू विल बी हैविंग योर जेसन फंक्शन. ठीक है? तो जेसन फंक्शनैलिटी को प्रिंट करके देखते हैं. तो ये आ गया जेसन फंक्शनैलिटी. तो आई विल से लेट्स हैव अ फाइनल आंसर दैट इज योर एक्चुअल डेटा फ्रॉम जेसन फंक्शनैलिटी. आई विल से वेरिएबल फाइनल आंसर दैट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट क्या यूज करेंगे? जेसन. बट जो जावास्क्रिप्ट है वो सिंगल थ्रेड में काम करता है, राइट? और जावास्क्रिप्ट जब सिंगल थ्रेड में काम करेगा, ये किसमें क्या होगा? आप जब ये फेच फंक्शनैलिटी से परफॉर्म करोगे, अब फेच इट्स एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन.
तो ये फंक्शनैलिटी डेटा प्रोसेस करके यहाँ पे जब रिस्पॉन्स देगा, सो ये टाइम इलैप्स हो सकता है. कितना टाइम इलैप्स होगा, इट डिपेंड्स ऑन नेटवर्क कॉल, राइट. बट जब आप सिंगल थ्रेड पे काम करते हो तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, इमीडिएटली ये लाइन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा. मतलब ये पर्टिकुलर लाइन के लिए वो वेट भी नहीं करेगा कि फैच से कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं. अब ये केस में क्या होगा, जब उसको रन करोगे, सो यू विल नॉट फाइंड रिस्पॉन्स डॉट जेसन एज एन आंसर. ये देखो, ये आपको ऑन द स्पॉट एरर जनरेट हो गया. दैट रिस्पॉन्स जो आपने फैच से डेटा परफॉर्म किया हुआ है, उसमें से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें उसको जेसन नहीं मिल रहा है, जो ऑलरेडी टेस्टेड है कि मिलना चाहिए था, बट ये नहीं मिल रहा है. द रीजन इज दिस फंक्शनैलिटी रिक्वायर्स सम टाइम टू परफॉर्म. तो हमने लास्ट टाइम हैंडलर यूज किया था. तो हैंडलर में कैसे होता है, जब आपका डेटा प्रोसेस होता है, आपका फुलफिल्ड होता है प्रोमिसेस, तब जाके आप जेसन फंक्शनैलिटी यूज करते हो. तो ये हैंडलर कब एक्टिवेट होगा, जब आपका प्रोमिसेस फुलफिल्ड होगा. बट ये केस में हमने कोई हैंडलर ही यूज नहीं किया हुआ है. इफ यू सी this line doesn't like it is not executing any handlers. So what I need to do is I just need to have await keyword here. Let me wait for the response first, right? await keyword क्या करेगा, ये लाइन से एग्जीक्यूशन के लिए पहले वेट करेगा, जितने भी उसको नंबर ऑफ मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड से. once you have data, then only you have to perform this. But when you write await keyword in any function, so scenario says you have to use your async function compulsory. अगर आप कोई await keyword यूज कर रहे हो, तो await keyword it is only valid in async function. So रूल ये है कि await अगर आप लिखते हो तो async लिखना कंपल्सरी, बट आप async डायरेक्टली भी लिख सकते हो विदाउट await keyword. Okay, that is the main concern. ठीक है. So await क्यों चाहिए? If you don't write await, so you will not find your JSON functionality in this case. Have a look. तो यहाँ पे आपको एरर मैसेज होगा, JSON is not a function. अगर JSON नहीं मिला तो आप आगे का डेटा भी कॉल नहीं कर पाओगे, राइट. सो टू अवॉइड हैंडलर, अगर आपको then और catch handlers यूज नहीं करना है, so you have this formula, but await must be written in async keyword. ठीक है. तो यहाँ से अभी आपको JSON मिलेगा, एंड देन ये जो response.json है, इट इज ऑल्सो जनरेटिंग द प्रोमिसेस, जो आप यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हैं. ठीक है. सो लेट मी हैव द फाइनल आंसर कि यहाँ पे आपको डेटा जनरेट करके मिल रहा है कि नहीं. यहाँ पे सी आगे आपका डेटा फुलफिल करके फाइनल एरे जनरेट हो गया. सो दिस इज ऑल्सो एक्टिंग, दिस इज ऑल्सो फेचिंग डेटा फ्रॉम APIs. तो ये केस में भी हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहिए, await कीवर्ड यहाँ पे यूज, बिकॉज दिस लाइन ऑल्सो रिक्वायर्स फ्यू maybe milliseconds to perform this. And once you have your data, then only you have to return your values. तब आप जाके अपने values को क्या करोगे, return करोगे. But you are returning from which function? Async function. तो अगर आप async function से return करोगे तो यहाँ पे आपका डेटा क्या आएगा, promises pattern से आएगा, जैसे हमने previous example में देखा. अगर आप कोई async function से return करते हो, right, तो async function का आंसर promises होता है, और ये promises को आपको क्या करना होगा, handle करना. So let us handle this API data. Handler से यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे फाइनली क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे. Okay, and here you will be having your final API data. So you have your API data function, जहाँ पे आपने एक URL पास कर लिया है, right? And you will be receiving data in this handler. और यहाँ पे आपको हैंडलर में क्या मिलने वाला है, आपका जो एरे होगा वो एरे आपको यहाँ पे कैप्चर करके मिल जाएगा. ठीक है. Yes. So you may perform this functions because ये फंक्शन में आप API का डेटा पास कर सकते हो. So इसका एडवांटेज है कि आप कोई भी टाइप का API का डेटा यहाँ से पास कर सकते हो. So let me pass this API data here. तो यहाँ पे हम लोग ये पाथ क्या करते हैं, पास करते हैं. तो this API data which is passing this URL, बराबर, और ये आपका API का क्या हो जाएगा, पाथ हो जाएगा. I just need to say okay, let me fetch data from API path. ठीक है. अब आप यहाँ पे कोई भी टाइप का डेटा क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो. लेट्स सी द आंसर. अब आप यहाँ पे रन करोगे तो ये आपको प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन मिलेगा. दिस इज योर API पाथ. अब समझो मैंने यहाँ पे लिखा products/1, मतलब वो प्रोडक्ट है जिसका ID 1 है. सो वो ID नंबर 1 के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगा वो फेच करके जनरेट करते हैं. ठीक है. अगर हमने यहाँ पे पास किया products/category, तो जो भी कैटेगरी ये प्रोडक्ट्स के बिलोंग करता है, इसके लिए हमें पहले API का पाथ देखना होगा, fake API store.com products/categories, ये वाला पाथ है. ठीक है. तो अगर हमारे पास जितने भी कैटेगरीज है, वो सब कैटेगरीज का अगर आपको डेटा चाहिए तो वो डेटा आप यहाँ पे जाके फेच कर लोगे. यहाँ पे सी, so you will be having another data from another APIs. आगे
अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा चाहिए, ओनली द प्रोडक्ट्स विच बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको यहाँ पे एपीआई का डेटा क्या करना है, एपीआई चेंज कर देना है. सो कैटेगरीज विच इज हैविंग कैटेगरी नेम दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स. सो इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पे मिलना चाहिए. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू फेच. वी नीड टू सी के डॉक्यूमेंटेशन में कि कौन से टाइप का डेटा आपको फेच करना है. सो लेट्स से गेट इन कैटेगरीज, इसका पाथ कुछ अलग होगा. सो लेट अस कैप्चर दिस डेटा. ये एपीआई के पाथ से डेटा कैप्चर करते हैं. Okay, so let's see this one. So products having category and category that is equal to jewelry. And see the behavior. Do we have data which belongs to just jewelries? अगर होगा तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एपीआई से डेटा क्या होना चाहिए, फेच होना चाहिए. सो इसका रिस्पॉन्स देख लेते हैं. ठीक है, तो नेटवर्क कॉल के लिए टाइम ले रहा है यहाँ पे, बट विल बी हैविंग रिस्पॉन्स हियर. सो दिस इज व्हाट async await says, right? So async, it's a function. Async can be written with functions, but output of async function, it is always promises. So you have to handle your values through handlers. Why async is required? So this is one of the small example. Since we are performing fetch operations, we don't want to use handlers. बराबर है, handlers use नहीं करना है हमें. तो आप await कीवर्ड से ये functionalities को perform कर सकते हो. If you don't write await, what does it mean? जो सिंगल थ्रेड जो है वो रिस्पॉन्स वेट करने से पहले ही आपका जेसन फंक्शन को क्या करेगा, एक्टिवेट कर लेगा. बट आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं आया यहाँ पे तो जेसन नहीं मिलेगा, और सिंस जेसन नहीं है तो आप आगे का डेटा प्रोसेस भी नहीं कर सकते. सो यू हैव टू वेट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन. जब इसका रिस्पॉन्स आएगा तब आप जेसन से क्या करोगे, डेटा कैप्चर. सो यू हैव टू राइट अवेट कीवर्ड. और सिंस आप अवेट कीवर्ड लिख रहे हो, सो आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, असिंक होना कंपल्सरी. तो एक आपका एक सैंपल एग्जांपल हो गया जिसमें आप कोई भी एपीआई का पाथ पास करो और रिटर्न में आप आपके हैंडलर्स यूज करो. तो लेट्स परफॉर्म दिस वन फॉर योर एपीआई ऑपरेशंस. सो इन project.js एक फंक्शन पहले से बना लेते हैं हमारा बॉटम में, async फंक्शन. ओके, और यहाँ पे लिखेंगे एपीआई कॉल नाम का एक फंक्शन बनाते हैं जहाँ पे आप अपने एपीआई का पाथ क्या करोगे, पास करोगे. सो लेट अस प्रिंट एपीआई पाथ. कोई भी टाइप का एपीआई आप यहाँ पे पास कर सकते. दिस इज योर async फंक्शन बिकॉज हम यहाँ पे await एपीआई यूज करते हैं. लेट्स से एपीआई कॉल. सो इन प्रोडक्ट केस, इन प्रोडक्ट सिनेरियो, ओके, आई डोंट वांट टू यूज दिस डमी प्रोडक्ट्स. हमने जो डमी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिए हुए हैं ऑन टॉप में, ये सब हमें नहीं चाहिए. दिस आर द डमी प्रोडक्ट्स. ये प्रोडक्ट्स हमें नहीं चाहिए. ये प्रोडक्ट्स हम लोग ये फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे. सो फंक्शन का नाम क्या है, एपीआई कॉल. फिर हमारा एपीआई का पाथ क्या है, दिस इज योर एपीआई पाथ. ये पाथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पास. सो दिस एपीआई कॉल, सबसे लास्ट में हमने फंक्शन लिखा है, यहाँ पे ये यूआरएल पास होगा और ये यूआरएल आपको यहाँ पे मिलना चाहिए. लाइन नंबर 374. लेट्स सी. सो लेट्स रन आवर एप्लीकेशन. रिलोड करते हैं एंड वी मस्ट हैव डेटा फ्रॉम प्रोडक्ट्स. इसका एपीआई का पाथ मिलना चाहिए. सी, दिस इज व्हाट वी हैव रिसीव्ड आवर एपीआई पाथ. Once our API path is ready, what is the next one? Conditional base लिखेंगे कि if API path अगर blank नहीं है, ठीक है, then I will say variable response which is equal to, कौन सा कीवर्ड यूज करोगे यहाँ पे, await and fetch your data from API path. और साथ में यहाँ पे मैं क्या सेट करना है, यहाँ पे मोड सेट करना है. मोड में क्या लिखना है आपको यहाँ पे, puts. ठीक है, उसके बाद जो भी आपका आंसर होगा वो आंसर आप क्या करोगे, response.json से कॉल एंड फाइनली रिटर्न योर. सो यहाँ से जो आंसर रिटर्न होगा वो आंसर आपका ये फंक्शन के थ्रू रिटर्न. ये फंक्शन में एपीआई का पाथ ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो ये आंसर रिटर्न होगा आपका बैक टू आपके फंक्शन जहाँ पे हमने अभी रिसेंटली कॉल किया है. सो दिस इज द एरिया वेयर वी हैव कॉल्ड आवर फंक्शन. तो यहाँ पे हैंडलर यूज करते हैं एंड लेट्स कैप्चर आवर वैल्यूज फ्रॉम एपीआई. तो वैल्यूज हम लोग कैप्चर कर लेंगे एपीआई से. सो दिस इज वन मोर वे टू परफॉर्म योर एपीआई कॉल्स async await functionality, and this is much more preferable, much more easier also. ये देखो, ये एंटायर कलेक्शन रेडी, और ये कलेक्शंस के लिए आपको डेटा प्रोसेस करना है. तो हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है यहाँ पे. सो यू हैव प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी का नाम है, यू हैव डिस्क्रिप्शंस आल्सो, राइट. आपके पास प्राइस है, रेटिंग है, एंड देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. टाइटल है, इमेज का पाथ है, राइट. ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल. सो हमने जो पहले प्रोडक्ट शो किया था यहाँ पे, इफ यू सी,
this is what we have written here. If product's length is greater than 0, so do all these procedures. जितना भी प्रोसीजर्स है वो हम लोग वो फंक्शनैलिटी में कॉल कर देंगे. सो इफ प्रोडक्ट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तो जो भी वैल्यू मिला वो हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट्स में स्टोर कर देंगे. आई विल से प्रोडक्ट्स अगेन विच इज इक्वल टू वैल्यू. अच्छा, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि इनिशियल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा. आई विल से वेरिएबल प्रोडक्ट्स विच इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब ये एंटायर कलेक्शन आपका किस में स्टोर हो जाएगा, प्रोडक्ट्स के अंदर. और बाकी जो कोड है वो यहाँ पे डंप कर दो, बाकी सब डेटा आपका एज इट इज रहेगा. ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे. तो ये तो आ गया, बट आई थिंक इमेज का इश्यू है. द रीजन इज वी नीड टू सी द वैल्यू फर्स्ट कि हमें एरे क्या मिलता है यहाँ पे कंसोल. सो लेट्स सी द वैल्यू. हमारे पास जो एरे है इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में जो की है वो की का नाम क्या है, इमेज है. और हमने जो डमी ये वैल्यूज बनाया था उसमें हमारा की का नाम क्या रखा था, हमने इमेजेस रखा था. तो थोड़ा सा चेंजेस करना होगा. यहाँ पे इमेज नहीं रहेगा, इमेजेस नहीं रहेगा, इमेज रहेगा. एंड हियर यू नीड टू रिप्लेस योर वैल्यूज लाइक दिस. अब देखते हैं, आई थिंक इट शुड गेट रिप्लेस्ड. ये आपको एपीआई से डेटा कॉल हो चुका. फिर हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है. आई थिंक सो जो एपीआई है ना वो एपीआई में आई डोंट थिंक सो कि डिस्काउंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट अवेलेबल है. एक चेक कर लेते हैं यहाँ पे. See, there is no discount property. There is no discount property exist. तो अगर डिस्काउंट है नहीं तो आप यहाँ पे डिस्काउंट इवेल्युएट नहीं कर पाओगे. और ये अगर डिस्काउंट नहीं है तो आप ये डिस्काउंट यहाँ पे पास भी नहीं कर सकते. तो एक काम करता हूँ, मैं एक डमी वैल्यू पास कर देता हूँ 10 करके. सभी प्रोडक्ट्स के लिए डिस्काउंट क्या रहेगा, 10 रहेगा. और यहाँ से ये हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं फॉर टाइम पे. ओके, लेट्स सी द बिहेवियर. और एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं. ठीक है, तो आई थिंक डिस्काउंट के रिलेटेड जो इश्यूज है वो भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया. और कुछ पाथ जो है वो लोड होने के लिए टाइम ले रहे हैं, बट नाउ आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल इमेजेस आर विजिबल ऑन स्क्रीन. एंड देन यू कैन डिस्प्ले और डिस्क्रिप्शन अगर है, आपके प्रोडक्ट का नाम, टाइटल, अच्छे तो कैटेगरी नेम, ये सब कर सकते हैं. लेट मी सी द इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्ट्रेशन. इज इट वर्किंग हियर? लेट्स डू रीलोड. ठीक है, कंसोल में भी प्रिंट करके देख लेते हैं. सो आफ्टर ऑन क्लिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यस, तो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड. सिंस वी हैव चेंज्ड आवर एपीआई तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा. सो इट इज आस्किंग फॉर प्रोडक्ट्स नाम का एक वेरिएबल 291. ओके, सो इट इज आस्किंग फॉर अ वेरिएबल व्हिच इज नॉट एग्जिस्ट. सो यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट्स नाम के वेरिएबल को. तो हमें क्या करना होगा, हमने जो वेरिएबल अभी डिक्लेयर किया है, so this variable we have declared here, यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा है. so instead of declaring here, API कॉल से पहले ही आप यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर दो और बाद में ये वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पे जाके पास कर दो. so initially it's an empty array, later on आपके API कॉल के बाद ये एरे क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा. एंड देन सेम आपका वैल्यू जो है प्रोडक्ट वेरिएबल वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा. ओके, सो विल बी हैविंग योर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स एरे यहाँ पे. So I think इसमें अभी वर्क होना चाहिए. Let's see the filtration. Yes. So we have electronics, we have jewelries and so on. तो इसमें भी जाके सेम मॉडिफिकेशंस करना हो, सेम सेट ऑफ मॉडिफिकेशन यहाँ पे करना हो. तो यहाँ पे भी हमारे पास डिस्काउंट नहीं है. Let us remove this. यहाँ पे इमेजेस नहीं है, ओनली इमेज है. ओके, देन डिस्काउंट के लिए एक मैनुअल वैल्यू पास कर देते हैं 10. एंड इमेजेस जो है वहाँ पे हमें इमेज पास कर. बस, that's it. So almost आपका filtration with API calls ready to go है. So if you click here, all this data it is visible through APIs. ये डेटा भी API से कॉल हो रहा है, ये डेटा भी API से कॉल. ये हमने async await से परफॉर्म किया और ये वाला पार्ट जो हमने परफॉर्म किया that is fetch API functionality. एक और एक टास्क इसमें करते हैं. Let's have a simple text box on top in project.html और एक टास्क परफॉर्म करते हैं. I need to have class container. ओके, एक h1 टैग लेते हैं यहाँ पे, बूटस्ट्रैप का क्लास यूज कर लेते हैं यहाँ पे. सो क्लास टेक्स्ट सेंटर. ओके, और यहाँ पे लिखते हैं सर्च बाय कैटेगरी. ठीक है, तो और एक कंटेनर हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, सर्च बाय कैटेगरी. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग क्लिक के बदले मुझे टेक्स्ट बॉक्स में डेटा पास करना है और सर्च करना है. ठीक है, सो लेट्स हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, इसके बिलो let's have a text box.
सो इनपुट टाइप हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे एक सिंपल सा बटन टैग दे देंगे एंड आई विल से सर्च करके, ठीक है। और बटन पे आई विल से वन आईडी, और बूटस्ट्रैप का क्लास भी यूज करना तो कर लेते हैं, btn डार्क, और ये आईडी का नाम होगा सर्च वैल्यू। ओके, लेट्स सी। आप चाहे तो यहाँ पे इसका क्लास भी यूज कर सकते हो, फॉर्म कंट्रोल। So what you need to do is you need to pass your category name, जैसे अभी यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक्स, और जैसे अब ये बटन पे क्लिक करोगे ऑन द स्पॉट ये डेटा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज फिल्टर होना चाहिए। मतलब जो हमने यहाँ पे क्लिक पे किया हुआ है वो बटन के क्लिक पे टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लेना है, एडिशनल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो बटन के ऑन क्लिक पे हमें परफॉर्म करना है। सो विल बी यूजिंग इवेंट हैंडलर अगेन, ये बटन का आईडी जो है, so try to avoid all these things on click, it is not admirable, so you have to avoid all this your event handling in your HTML page। आप सब ये JavaScript में करो। So let's go to JavaScript and button ID search value पे click करेंगे। So let's have on button click perform करते हैं। So document, let me use event handler, so get element by ID यूज कर सकते हैं, और आईडी का नाम होगा सर्च वैल्यू, और इस पे हम लोग जो इवेंट हैंडलर यूज करते हैं ऑन क्लिक। इवेंट हैंडलर में रूल ये है कि आप एक एलिमेंट पे एक इवेंट एक ही बार दे सकते हैं, मल्टीपल टाइम पास करोगे तो लास्ट डेफिनेशन काउंट हो जाता है। ओके, दिस इज व्हाट ऑलरेडी वी हैव डन प्रीवियसली। और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन में आप एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हो। द ओनली कंसर्न इज कि एरो फंक्शन में दिस जो कीवर्ड है उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है compared to anonymous function, so depend करता है कैसे काम करना है। I need to fetch data from text box। अब text box से डेटा आप ID और क्लास से ले सकते हो। अब लोग यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे नेम, अभी तक हमने नेम कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है। So I will say let's say cat value, तो यहाँ से हमें डेटा क्या करना है, कैप्चर करना, नेम के थ्रू डेटा कैप्चर करना है। तो नेम एक स्पेशल एट्रीब्यूट है, इसके थ्रू डेटा कैसे कैप्चर करोगे, तो वी हैव अ स्पेशल मेथड, और वो मेथड का नाम है डोम स्ट्रक्चर का ही मेथड है आपका, डोम का सिलेक्टर मेथड है, और उसका नाम है गेट एलिमेंट्स बाय नेम। और सिंस हमारे पास एक ही टेक्स्ट बॉक्स है तो ये एरे जनरेट करेगा, और वो भी इंडेक्स नंबर 0 पे आपको ये टेक्स्ट बॉक्स मिलने वाला है। ओके, सो लेट्स डू क्लिक हियर। ओके, ये देखो एक नोड लिस्ट जनरेट किया होता है, और इंडेक्स नंबर 0 पे ये टेक्स्ट बॉक्स कॉल होगा, राइट है। तो गेट एलिमेंट्स बाय नेम ऑलवेज रिटर्न्स अ कलेक्शन, और वो कलेक्शन में सिंस आपके पास एक ही टेक्स्ट बॉक्स है तो ये इसके इंडेक्स नंबर 0 पे डेटा कैप्चर करेगा, और टेक्स्ट बॉक्स से हम लोग को वैल्यू मिलता है, तो इसके इंडेक्स नंबर 0 से आप टेक्स्ट बॉक्स का क्या कैप्चर करोगे, वैल्यू कैप्चर, ठीक है। एंड सी द परफॉर्मेंस हियर, जैसे आपने बटन पे क्लिक किया अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है, एंड यू मे हैव एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम दिस टेक्स्ट बॉक्स, राइट। इसके बाद आपको कैटेगरी वाइज डेटा फेच करना है। कैटेगरी वाइज डेटा फेच करना है तो आपको फेक एपीआई स्टोर में ये जो है गेट प्रोडक्ट्स कैटेगरी वाइज, ये एपीआई आपको क्या करना होगा, कॉल करना। सो लेट्स कैप्चर कैटेगरी वाइज डेटा। तो कंडीशन लिख देते कि इफ, ओके, चाहे तो आप यहाँ पे ये एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, दिस वन आई विल से वेरिएबल कैटेगरी नेम व्हिच इज इक्वल टू दिस। तो प्रिवेंटिव एक्शन फॉलो कर दे कि इफ कैटेगरी नेम if not equal to blank, ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं कैटेगरी लेंथ if it is not equal to 0, दोनों ऑप्शन लिख सकते हैं, राइट। तो API कॉल करते हैं, I will say variable API that is equal to, ये हमारा API रहेगा यहाँ पे, let's capture category, let's capture products by category, so backticks यूज करते हैं। तो ये यहाँ तक तो सेम है, ये सिर्फ जो कैटेगरी का नाम है वो आपको यहाँ से मिलेगा। आप इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करो, बैकटिक्स में ही इंटरपोलेशन अलाउड है, सो डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट में आप अपने वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव दिस वेरिएबल, एक बार चेक कर लेते हैं। सो इफ वी हैव आवर राइट वैल्यूज इन टेक्स्ट बॉक्सेस, लेट्स सी एम्प्टी नहीं है, देन यू विल बी हैविंग योर एपीआई पाथ, ऐसे एपीआई पाथ आ जाएगा। और अभी हमने async await फंक्शन ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ऑन टॉप, राइट। तो यहाँ पे आप अपने एपीआई का पाथ क्या करो, कॉल करो, तो ये रीयूज कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे आई विल से
एपीआई कॉल क्या पास करोगे, आपका एपीआई का पाथ और हैंडलर यूज कर लो, देन और देन के बाद आपको क्या मिलेगा, आपके एपीआई के वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएगा। लेट अस हैव वैल्यूज। अब देखते हैं रिजल्ट्स क्या आता है यहाँ पे। तो जो कैटेगरी पास करोगे वो कैटेगरी वाइज डेटा आना चाहिए। सो आई विल पास इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, टेस्ट पास करते हैं। एरे क्या मिला आपको, एम्प्टी, क्योंकि टेस्ट नाम का कोई कैटेगरी है, राइट। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पास करोगे और इलेक्ट्रॉनिक वाइज आपको डेटा यहाँ पे कलेक्शन, तो अगर एरे का लेंथ ग्रेटर देन 0 है, प्रिवेंटिव कोड हमने लिखा हुआ है, तो फॉलो करते हैं। तो अभी हमने रिसेंटली डेटा प्रोसेस किया हुआ है ऑन फिल्ट्रेशन पे भी, ये वाला पार्ट। सो इफ योर प्रोडक्ट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तो आपको ये एंटायर प्रोसीजर क्या करना है, फॉलो करना है। दिस इज व्हाट वी हैव डन राइट नाउ। सेम थिंग हमें कॉपी कर लेना है, या तो इसका भी आप फंक्शन बना देना, दिस इज प्रिफरेबल। ओके, तो अगर आपका प्रोडक्ट्स का लेंथ, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 है, तो ये सब आपका काम होते रहना चाहिए, राइट। इफ प्रोडक्ट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तो जो भी वैल्यू मिला वो वैल्यू के बेस पे काम करेगा। आई विल से प्रोडक्ट्स, ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू, और यहाँ पे पास कर दो। ये एंटायर कोड चाहिए तो यहाँ पे पास। आप इसका भी एक फंक्शन बना लेना, दैट इज मच मोर प्रेफरेबल इंस्टेड ऑफ हैविंग सेम कोड अगेन एंड अगेन, राइट। अगर प्रोडक्ट्स का वैल्यू लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तो अगेन आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। एंड लेट्स सी द बिहेवियर, फाइनल बिहेवियर। सो इफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इफ यू सर्च, अच्छा हाँ, बट बिफोर दिस आपको ये स्ट्रक्चर को भी इनर एचटीएमएल को एम्प्टी करना होगा। सो जहाँ पे आप डेटा डंप कर रहे हो, योर यूएल टैग, आई थिंक ये वाला है हमारा, बराबर, प्रोडक्ट लिस्ट, ये यूएल टैग को पहले हमें एम्प्टी करना होगा बिफोर वी प्रोसीड। सो अगर प्रोडक्ट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तो इसके जो इनर एचटीएमएल है उसको हमें क्या करना होगा, एम्प्टी करना। मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हमें एम्प्टी करना। लेट्स रिफ्रेश कर दें। सो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो फिल्टर करके डेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज आना चाहिए। यहाँ पे डेटा आ रहा है फिल्टर होके इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज, बट इनर एचटीएमएल का वैल्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो रहा है, बिकॉज आई एम यूजिंग गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। कौन सा वाला लिस्ट यूज करें, प्रोडक्ट लिस्ट। एंड सिंस आई एम यूजिंग गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या यूज करना होगा, 0 का, तो मल्टीपल हो सकता है हमारे पास। अब देखते हैं, ये देखो, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। सो वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड रिलेटेड डेटा। सो जो भी ज्वेलरी है वो भी चेक कर लेते हैं, और लेट्स सी द वैल्यू व्हिच बिलोंग्स टू ज्वेलरी। सो आपने क्लिक पे भी तो डेटा फिल्ट्रेशन किया है, बटन के क्लिक पे भी आपने डेटा क्या कर दिया, फिल्ट्रेशन का, राइट। सो ऑलमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो था वो हमने कवर अप कर लिया। सो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा असिंक का, वो भी हमने यहाँ पे कवर अप। So if you are performing your API calls, तो please remember कि Ajax पहला preference होगा, Ajax आपको पढ़ना होगा। Then jump to promises, promise कैसे काम करता है वो सीख लो। Promise आ गया तो आपको fetch API भी clear हो जाएगा, ठीक है, because fetch API जो है हैंडलर पे ही काम करता है, उसमें भी post get बहुत सारे options है। और उसके बाद और better way से अगर आपको promises लिखना है, so async and await, ये combinations में आप use कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते हो, तो आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हो। मैं एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आपको बता देता हूँ। तो बहुत लोग एक्सियोस भी यूज कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। सो इन केस इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस फंक्शनैलिटीज, सो यू मे परफॉर्म थर्ड पार्टी लाइब्रेरी एक्सियोस। सो एक्सियोस जो है, इट्स अ प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट व्हिच कैन बी यूज्ड इन Node.js as well as in your browser, okay, and it is indirectly performing your Ajax। ये सब Ajax का ही फंक्शनैलिटी का करता है, परफॉर्म करता है। So either you can install your Axios, आप नोड पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल कर सकते हो, या तो Axios आप यहाँ पे स्क्रिप्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो आपको CDN इंप्लीमेंट करना होगा, तो आपको सिर्फ इंप्लीमेंट करके बता देता हूँ मैं कैसे करना है। सो इन योर project.html फाइल, अज्यूम यहाँ पे आपका Axios कॉल कर दिया, राइट। अब आप Axios कॉल कर दो तो आपके जावास्क्रिप्ट फाइल में देख लो कि एक्चुअली Axios में है क्या, टॉप में प्रिंट कर देते हैं। So if you use Axios, so Axios is nothing but a list of functionalities, और ये promise based functionalities perform करके देता है। Let's see the behavior, console में क्या आता है। So Axios it is acting as a simple function, और उसके अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे functionality मिल जाएंगे। अगर आपको डेटा fetch करना है तो आप Axios में क्या यूज करोगे, get नाम का फंक्शन यूज करोगे। तो अगर आप Axios के थ्रू भी डेटा परफॉर्म करोगे तो आंसर सेम रहेगा।
सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे प्रिंट करके देख लो। तो एक्सियोस डॉट गेट, लेट्स एक टेम्पररी कैटेगरी का डेटा फेच कर लेते हैं यहाँ पे लाइक दिस, और सी द आंसर ऑफ एक्सियोस। तो एक्सियोस का जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पे जो मिलेगा दैट इज ऑल्सो प्रॉमिस। एक्सियोस भी रिटर्न प्रॉमिस बेस्ड असिंक्रोनस ऑपरेशंस परफॉर्म करके देता है। लेट्स सी द लाइन नंबर 6। सो अगर आप एक्सियोस का आउटपुट देखोगे, दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ प्रॉमिसेस। तो एक्सियोस का आउटपुट आपका फुलफिल्ड हुआ रहेगा। यू हैव योर ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर डेटा नाम के प्रॉपर्टी में आपके पास यहाँ पे वैल्यूज है। दैट्स इट। तो आइदर आप हैंडलर यूज कर लो, बाकी का डेटा परफॉर्म कर लो, दिस इज फाइन। आइदर यू मे यूज थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, बट प्रेफरेबल ये रहेगा फेच एपीआई यूज करो। अदरवाइज जो अभी हमने रिसेंटली फंक्शनैलिटी यूज किया है असिंक का, जहाँ पे आपका फंक्शन भी है, जस्ट यू नीड टू पास योर एपीआई डेटा और आपके रिजल्ट्स जनरेट होंगे। Okay, so that was lots of functionalities in a single JavaScript project. Okay, so that was project related functionalities.